Hi guys, I know where the hell have I been? Actually, if I'm being completely blunt with you guys, I was really sick, okay, and I still am a little bit. So anyway, we'll talk about that in another video, but this is a story time video and I just want to give like a disclaimer before we get into the video that number one, since I am not the victim in this video, I am not going to be making any joke like how I do in some of my story times. Number two, I just want to give like a trigger warning for SA, SW, and like it's just considered a trigger warning. So if you think that any of these topics or any of the topics related to SA would, trigger you, I wouldn't suggest that this video is for you. Okay, so majorly, I didn't want to tell the story, okay, but I think it's very important for young girls to listen to this, even like for guys to understand how the world really is. So now the story starts. We have had a maid, like the same maid, for over 8 to 9 years, okay, and she has a daughter, and let's call the daughter J, and we'll call the maid A. The daughter has literally grown up in front of us, okay, because she's like this small when she came, and like we literally treated her as our own daughter, and she would like chill with me and she would play games on my laptop and all of that, okay. Like I genuinely thought of her as a younger sister. Then I moved to college, right? I moved to Pune. And a little backstory on the maid and her daughter is that the maid remarried, like she came here from some other city and she remarried a guy. That's it. That's all I knew of. Now, so when I was in college, my mom used to tell me that, ये बहुत छुट्टियां लेने लग गए हैं, ये लोग आते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, और जब ये हर बात पे बीमार पड़ जाते हैं, मुझे डर लग रहा है कि इनको कुछ है तो नहीं, and all of that. So of course I was in college. I was like, whatever. I didn't pay much heed to it because obviously now after that when I came back, फिर भी मुझे देखने लगा कि बीच बीच में ऐसे 3 3 दिन ना बहुत बीमार हो जाते थे. लाइक बीमार आई मीन लाइक वो उठ के झाड़ू के वो शायद खुद ही झाड़ू बन के लेट जाते थे. बहुत बुरी हालत होती थी ऑफ द मेड. उसकी बेटी जो थी वो तो स्कूल जाती थी, तो वो जब स्कूल से आती थी तो मैं देखती थी बहुत थक गई है. बट देन आई यूज्ड टू थिंक, इवन मी एंड माय मॉम यूज्ड टू थिंक दैट मे बी वो स्कूल गई है तो वो थक गई है उसके बाद, व्हाटएवर. सो नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, आई वुड से लाइक जैन और समथिंग, फिर से ऐसा हुआ कि वो ना फिर बीमार पड़ गई और वो फ़ोन कर रही मेरी मम्मी को कि मैं नहीं आ पाऊंगी, हमारी बहुत तबीयत खराब हो गई है. सो माई मॉम जस्ट केम टू मी एंड माई मॉम वाज लाइक, मेरे को लगता है कि ये बीमार नहीं हुई है, इसका जो पति है वो कुछ करता है और like something he's doing. I just have this feeling. That's what my mom said. And I said, so what do you want to do about it? She said, just pick up the car and let's go. Let's go pick them up. I said, what? She said, मैं उनसे कोई काम नहीं कराने वाली हूँ, obviously. I just want to make sure that they're okay. And if they need to go to the hospital, we'll take them to the hospital. So me, my mom, देन हमारे घर के सामने मेरी मॉम की जो बेस्ट फ्रेंड रहती है वो और उनका बेटा, हम लोग 4 गए थे साथ में, बिकॉज हमें लग रहा था कि वहाँ पे अगर कुछ कलेश चल रहा हुआ, यू नेवर नो. एंड उधर जाके मतलब हम उनका घर ढूंढ रहे हैं और वो सब कर रहे हैं. मेरी मम्मी बोल रही थी मैं उनको बताऊंगी नहीं कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि व्हाट्स रॉन्ग. मतलब वो, व्हेन आई टेल यू दैट वो इतनी बुरी हालत में काम पे आ रही थी, ऐसा लगेगा आपको कि उसको जॉन्डिस हो रखा है, बट लेकिन थ्रू आउट द ईयर इट्स टू बैड. तो हम वहाँ पे जाते हैं और किसी तरीके से हम उनका घर ढूंढते हैं, ठीक है. लाइक दरवाजे पे नॉक करते हैं और जो मेरी मेड है ए, वो दरवाजा खोलती है. एंड उससे दरवाजा खोलने के लिए भी खड़ा नहीं हो जा रहा होता है. और जो उसकी बेटी होती है जे, शी इज ऑल्सो लाइक वो अपने बेड पे लेटी हुई होती है. एंड माइंड यू देयर रूम इज लाइक, देयर होल हाउस इज लाइक the size of your room, because obviously, and it's so sad, but so there's like एक बेड ऐसे है और एक बेड ऐसे है, तो think of it like an L shape, ठीक है, कि यहाँ पे मम्मी पापा का बेड है और यहाँ पे उसका बेड है राइट अटैच टू इट. मेरा तो दिल नीचे हो जाता है. आई सी हर आईज, जेज आईज, एंड द येलो, लाइक येलो एंड रेड. सो आई एम लाइक व्हाट द फक हैपेंड. और फिर हम उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो उठ ही नहीं रही है. हमने ए से पूछा कि क्या हुआ है, मतलब तुम दोनों को ऐसा क्या हो जाता है बीच बीच में. तो उसने फिर सेम बात बोली कि कल रात को जो मेरे हस्बैंड है वो कुछ खाने का लेके आए थे और हमने वो खाया, उसके बाद हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई. विच लिटरली स्टक टू मी कि पिछली से जितनी बार ये लोग बीमार हुए हैं, इन्होंने जब भी ऐसा खाया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, दैट्स बिकॉज इसका पति कुछ लेके आता है, ठीक है. और जब वो खाते हैं डिनर में, अगले दिन ये लोग बहुत बीमार हो जाते हैं, लाइक बहुत बीमार हो जाते हैं. सो माई मॉम वाज लाइक, वो कुछ डाल तो नहीं रहा तेरे खाने में. और उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट लेकिन ऑब्वियसली वो कुछ डाल ही रहा होगा. लाइक व्हेन आई टेल यू दैट दे बोथ लुक्ड रूफीड, एंड आई डोंट नो कि किस तरीके का रूफी उसने बंदे ने किया होगा, कंसिडरिंग भाई कहाँ से गंदा सा कुछ पॉइजन ही लेके आ गया. आई रियली डोंट फकिंग नो. तो फिर जो हमारी मेड होती है वो बोलती है कि वो ना गंगा जल भी लेके आए थे और वो हमें बोलते हैं गंगा जल बीच बीच में पीने के लिए. तो मेरी मम्मी बोलती है क्या. और फिर उन्होंने बॉटल ली. वो बॉटल भाई बहुत, उसमें कुछ येलो सा लिक्विड था. और मेरी मम्मी बोलती भाई ये कोई गंगा जल नहीं है. और फिर हमने वो बॉटल उठाई, तो मैं जे को उठा रही हूँ, ठीक, विद टीयर्स इन माई आईज, बिकॉज आई थिंक शी इज लाइक डन फॉर.
और मैं उसको उठा रही हूँ, मैं उसको उठा रही हूँ, मैंने बोला कि क्या हुआ क्या हुआ, तो वो रोए जा रही है उठ के। मैंने बोला कि पहले वो मुझे देख के बोल रही है कि दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो, और मैंने बोला भाई दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या होता है, उठ तू, क्या हुआ है तेरे को, कुछ नहीं बोल रही है। देन शी स्टार्ट्स क्राइंग, आई एम लुकिंग एट हर, आई एम लाइक व्हाट हैपेंड, लाइक मेरी मम्मी उसको देख के बोल रही है क्या हुआ, तो फिर वो अपनी मम्मी को देखती है, ठीक है, उसकी मम्मी इज लाइक कुछ मत बोल टाइप्स। तो माई मॉम लिटरली टुक हर मॉम टू द साइड अपनी दोस्त के साथ जो हमारे साथ गई थी, उन्होंने बोला कि तू प्रियांशी को बता। तो मैंने बस उससे पूछा कि क्या हुआ है, तुझे किसी ने कुछ किया है, तो शी जस्ट लाइक, बिकॉज शी वाज सो लाइक ड्रग्ड अप, शी कुडंट लाइक इवन से एनीथिंग, शी वाज जस्ट लाइक या। एंड व्हेन आई टेल यू दैट माई हार्ट सैंक, ठीक है, और मैंने बोला कि क्या तेरे पापा ने, लाइक द स्टेप डैड, तो कहती या, एंड आई सेड व्हाट डिड ही डू, एंड देन शी जस्ट डिडंट वांट टू टेल मी, एंड शी जस्ट लाइक लाइड हर हेड डाउन ऑन मी, लाइक आई एम टेलिंग यू, मैं बस कंट्रोल करी थी कि मैं रोना नहीं चाहती इनके सामने, कि इनको और बुरा लग जाएगा कि मेरे साथ क्या हो गया, बिकॉज that's what happens, right? Ki when you talk to a victim and they're telling their story and you start crying, I don't want to make it about myself. मैंने उसको बोला कि चल क्या हुआ है तेरे को, डॉक्टर के पास चलते हैं, बिकॉज ब्रो आई वाज स्कैर्ड इफ ही हैड लाइक, उसको उठाया, मैंने बोला कि चल डॉक्टर के पास चलते हैं, और मेरी मम्मी उसकी बीवी से, मेरी मम्मी हमारी जो मेड है ए, उससे पूछ रही है कि तुझे कोई शर्म नहीं आ रही, तेरी बेटी की हालत देख, क्या हुआ है, हमें बता हमें बता। भाई वो बताने को राजी ही नहीं है, मतलब माई मॉम लिटरली हैड टू लाइक यूज फोर्स कि बता क्या हुआ है, लाइक तुझे शर्म नहीं आ रही है एक माँ होके कि ये सब। और मैं तो बस देख रही हूँ अपनी मेड को पकड़ के, अपनी वो हाउस हेल्प की डॉटर को पकड़ के, कि मतलब आई सीन दिस इन क्राइम पेट्रोल, नेवर इन रियल लाइफ। तो वो मेरे को बोलती है कि हाँ उसने इसको टच किया था। मेरी मम्मी बोलती कि तो तुझे पता नहीं चला है जो कि उसने उसको टच किया था या जो भी किया था, तो कहती कि नहीं मैं भी बहुत नशे में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर ये रोने लग गई थी। उसने इतना बोला, ठीक है। तो जो मेरी मम्मी की फ्रेंड हमारे साथ गई थी और उनका बेटा, मैंने उनको बोला था कि आप गाड़ी मोड़ के रखो, लिटरली आई टुक जेज हैंड और हम उसको नीचे ले गए। पहले तो मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना था जस्ट टू गेट इट चेक्ड इफ ही हैड डन एनीथिंग, और उसके बाद फिर उसकी मम्मी पीछे पीछे आ रही है, तो मेरी मम्मी उसको बोलती कि तू अब दूर रह, तू अब आ मत जाइए उसके पास, क्योंकि वी वुड हैव हैड मोर सिंपैथी फॉर हर इफ शी डिडंट नो, बट शी फकिंग न्यू, लाइक शी लिटरली, मुझे उसकी शक्ल भी दिख रहा था कि वो जे को ऐसे देख रही थी कि बता मत इसको, सच मत बता इनको, कैन यू फकिंग इमेजिन। और मैंने जे को पकड़ा, हम लोग नीचे गए उनके घर से, और फिर उसकी मम्मी पीछे पीछे आ रही थी, उसने बोला प्लीज 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 मुझे मेरी बेटी से अकेले मत करो, एंड लीगली ऑल्सो वी कांट डू दैट। सो वो हमारे साथ गाड़ी में बैठी, तो फिर सिंस वो हमारे साथ गाड़ी में बैठी, सबसे पहले हम गए पुलिस स्टेशन, ठीक है। हम पुलिस स्टेशन गए और हमने वहां पे जाके जो भी कॉन्टैक्ट के थ्रू, एक दिस लेडी पुलिस ऑफिसर वाज देयर, ठीक है, तो हम उसके पास गए, और मैं, मेरी मम्मा, जे, ए और वो दो लोग, हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और वो पुलिस वाले उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्या हुआ है, चुप, दोनों चुप हैं। तो मैं लिटरली जे को बाहर लेके जाती हूँ, और क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आप पता करो, और मैंने उसको बोला कि सुन प्लीज बता दे, कुछ भी होगा मैं तुझे अडॉप्ट कर लूंगी, मैं तुझे अपने घर पे रख लूंगी, आई स्वेयर, मैं तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे उतने पैसे दे दूंगी, पर बस इस बात को छुपा मत, तू बता दे प्लीज। एंड माइंड यू शी इज लाइक 13 years old, and I know how fucking naive 13-year-old girls are, because I was that too. So मैं उससे पूछती हूँ, and then she just says that he tried like me, and I have to take a breath, bro. It's like too much for me to handle. And then she said that he told me to lie naked on him, but I didn't do it. So he just like kept touching me, and like I don't want to say anything more. He hadn't like hit her. At least that's what she told me. By that time, with tears in my eyes, I told her, please जो भी ये पुलिस वाले पूछ रहे थे इसे उनको सच बता दे, प्लीज बता दे, मैं तुझे अपने घर पे रख लूंगी। तो कहती है ठीक है मैं बता देती हूँ। तो हम अंदर गए, तो जो कॉप है वो बोलती है कि यू हैव टू फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट हिम। तो उसकी मम्मी बोलती है मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो उसकी लीगल गार्डियन है, तो अभी मम्मी ही कर सकती है रिपोर्ट, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट। तो उसकी मम्मी बोलती है मैं नहीं करूँगी। तो वो जो जे है, वो मेरी साइड में बैठी है, उनकी बेटी, वो रो के हाथ जोड़ के उनसे बोल रही है प्लीज रिपोर्ट, FIR कर दो इसके अगेंस्ट, ये बहुत गंदा है, ये मेरी मम्मी को भी मारता है, ये भी करता है, वो भी करता है और ऐसा। तो उसकी मम्मी बोल रही है कि नहीं मैं नहीं कर सकती इससे, इसके अगेंस्ट, क्योंकि अगर हमने ये बात आगे बता दी समाज में तो हमारी एक तो बेइज्जती होगी वो अलग, और दूसरा इससे कोई शादी नहीं करेगा जे से। सी नाउ फॉर अस लाइक वी वुड से दैट वी आर प्रोग्रेसिव, बट लेकिन उनके लिए आई अंडरस्टैंड हाउ दैट माइट हैव बीन अ बिग डील कि किसी को पता चल गया और वो सब, एंड इट्स फाइन, ठीक है। आई एम नॉट इवन गोइंग टू बी लाइक ओ आपकी सोच कैसी है। अगर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना डिफरेंट होता है, आप उनकी सोच नहीं बदल सकते हो। माई मेन कंसर्न वॉज दैट तू बस FIR उसके खिलाफ कर दे,
और तुम दोनों चाहे मेरे घर आके रह लो। लाइक माई मॉम वॉज वेरी प्रो द आइडिया, और मेरी मम्मी ने सबको घर पे बता दिया था कि ऐसा हो गया है, सो जस्ट कीप लाइक फूड रेडी एंड ऑल ऑफ दैट, ताकि आए इनको खाना खिलाएंगे, इनकी हालत इतनी खराब है। भाई वो बंदी जो है एफआईआर करने को राजी ही नहीं है, और उसके बाद फाइनली मान जाती है कि ठीक है मैं एफआईआर कर दूंगी, बट मैं डोमेस्टिक केस बोलूंगी, मैं ये नहीं, मैं डोमेस्टिक वायलेंस बोलूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसने मेरी बेटी को असॉल्ट किया कुछ भी। एंड यू लाइक ओके फाइन, doesn't matter, just fucking we need that guy behind the bars, okay? And the cop literally told her कि तू जैसे ही FIR लिख के उस पर साइन करेगी, मैं on the spot लोगों को भेज दूंगी उसको उठाने के लिए। He was a driver, okay, at some school, which makes it worse. He's literally surrounded by kids and like he's a fucking pedophile and what not. हमने ये बात उनको बताई थी जब पुलिस वालों को, तो उन्होंने बोला कि इस आदमी को हम बंद करना चाहते हैं, बट हम नहीं कर सकते अगर तू FIR नहीं करेगी, तो फिर हमारा कोई वो नहीं है लीगल दिस थिंग कि हम उनको उसको जाके पकड़ लें। उसने फाइनली डोमेस्टिक वायलेंस का करके FIR दर्ज कराई, जिसमें से भी उसकी बेटी ने, जो मेरे साइड में बैठी हुई थी, वो उसने रो रो के बोला है कि प्लीज इसको भेज दो यहाँ से, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। जैसे ही उसने FIR करी, वहां से जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपनी एक वैन भेज दी, ठीक है, स्कूल में, जहाँ का ड्राइवर था, ही वाज अ बस ड्राइवर। सो वो वहाँ पे जाते हैं एंड देन ही इज नॉट देयर, एंड वो स्कूल वाले से पूछते, तो वो बोलते हैं कि वो भाग गए। तो ही मस्ट हैव हर्ड, क्योंकि हम उनके जगह पे गए थे, सो इट्स लाइक अ चॉल, राइट? तो वहाँ पे अगर ज्यादा लोग किसी के घर में घुस रहे हैं तो ऑफकोर्स एक थोड़ा सा तमाशा सा बन गया था, और लोगों को पता चल गया था कि कोई आया है यहाँ से इनको लेने के लिए। तो हो सकता है कि लोगों ने बता दिया उसको कि यू नो तेरे घर में आए थे, तेरी बीवी और बेटी को लेके कहीं चले गए हैं, तो वो समझ गया होगा कि भाई कल रात को जो हुआ था वही हुआ होगा। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि वो तो भाग गया है, तो अब क्या करें? तो उसने बोला कि देखो इसको तो हम ढूंढ लेंगे, अब तुम लोग जो है फिलहाल के लिए कोई शेल्टर ले लो या घर चले जाओ। जो जे है वो बोलती है मुझे घर नहीं जाना बिल्कुल भी, प्लीज प्लीज प्लीज। और फिर मेरी मम्मी बोलती है कि एक काम करो, तुम लोग मेरे घर आ जाओ, हमने खाना बनवाया हुआ है तुम्हारे लिए, एक दो दिन आके वहीं सो जाओ, घर मत जाओ। फॉर दैट किड ऑल्सो इट मस्ट बी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग टू इवन सिट ऑन दैट बेड, राइट? तो वो मेरे घर आ जाते हैं, हम उनको लेके आते हैं, हम उनको खाना खिलाते हैं। मैं उसको बोलती हूँ कि तू नहाने जा शाम की, इसकी मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले रखी होती है। वो नहाते हैं और वो अभी भी बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली, ठीक है। एंड मैं उसे बोलती हूँ कि तू ठीक है, मैं उसे पूछती हूँ ठीक है, वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को बस गेम्स खेलनी है। और फिर मेरे लैपटॉप पे गेम्स खेलने लग जाती है। मे बी दैट सम सॉर्ट ट्रॉमा रिस्पॉन्स, बट I just felt so bad for the kid, bro. Like so bad. So I asked her, "What do you want to eat? I'll order something for you." Like I just wanted to make sure that उसको अगर छोटी सी छोटी चीज से भी खुशी मिल रही है तो let's just give it to her because she's gone through something so bad. जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है कि ये मुझे फोन कर रहा है। तो मैंने बोला कि फोन करा तो बताओ पुलिस वालों को, क्योंकि पुलिस वालों ने लिटरली बोलता है कि जैसे एक भी फोन आए तो तुम मेरे को बता देना, ठीक है? तो उसने बोला अच्छा ठीक है मैं बता दूंगी, मैं ना उठाती नहीं हूँ, मैं उठाती नहीं हूँ। भाई उसकी मम्मी पे ना मेरे को बहुत शक था, क्योंकि पहली बात तो कैसी माँ हो आप? मेरे को एक स्ट्रेंजर, एक रैंडम बंदा होते हुए मैं उसको अडॉप्ट करने को रेडी हूँ, और वो आपकी बेटी है और ये सब हो रहा है और आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो। तो उसकी मम्मी बोलती कि नहीं मैं फ़ोन नहीं उठा रही और जो भी। तो हम लोगों ने पुलिस वालों को फ़ोन किया, ठीक है, मम्मी ने मेरी, कि ऐसा उसको फ़ोन आ रहा है। तो दैट कॉप लिटरली सेड कि अगर उसकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है आपकी मेड की तरफ से, तो वी कांट डू एनीथिंग। सो सैड। एंड देन उसके बाद रात को वो लोग हमारे घर पे ही सोते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेक अप एंड ऑफ कोर्स आई गो डाउन राइट टू चेक अप ऑन हर। एंड मैं कोई 11-12 बजे मैं नीचे गई तो वो थे ही नहीं घर पे। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि वो कहाँ है। मम्मी बोलती कि सुबह उसका जो पति है वो घर के नीचे आ गया था, ठीक है, और उसने इसको बोला एक को कि चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। और वो लौड़ी चली भी गई, जो जे थी वो यहीं पे थी, ठीक है। तो वो अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी कि मेरी मम्मी कहाँ गई, कि मेरी मम्मी को कुछ कर ना दे, वो कुछ हो ना जाए। तो वो भी पीछे पीछे उनके चली गई, ठीक है। इतना ही हमें पता था। उसके बाद फिर मेरे को जे का कॉल आया एंड शी टोल्ड मी, लाइक पता नहीं उसने किससे किससे फ़ोन लेके मुझे कॉल किया होगा, क्योंकि उसके पास फ़ोन भी नहीं था बच्चे के पास। वो मुझे ये बताती है कि अपेरेंटली वो बंदा आया था अपनी बाइक पे, पर वो इसकी मम्मी को बाइक पे लेके चला गया और जे उनके पीछे पीछे भाग रही थी, और बीच रास्ते में उसने ऐसे बाइक गिरा दी और ये बोल के कि मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। कैन यू इमेजिन कि मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मैं मैं नहीं चला पाऊंगा भाई को, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके जा, मुझे हॉस्पिटल लेके जा। तो उसकी मम्मी, ठीक है, अपने प्रेम भक्त पता नहीं कहाँ की, उसने लोगों को बुलाया और कोई बंदा अपनी गाड़ी में इनको हॉस्पिटल पे लेके चला गया जे के साथ, क्योंकि जे साइड में ही थी। और फिर ये हॉस्पिटल से मुझे फोन करके बोल रही होती है कि अभी उन्होंने बोला है कि उनका हल्का सा बीपी लो होगा, पर मुझे तो लग रहा है वो झूठ बोल रहा है, शायद उसने भी वो मेडिसिन खा ली होगी जो उसने हमें खिलाई थी रात को। लाइक एंडलेस थिंग शी वाज टेलिंग मी एंड आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू एंड नीदर डिड माय मॉम। सो माय मॉम जस्ट डायरेक्टली कॉल्ड द कॉप, बिकॉज द थिंग इज दैट इन मामलों में आप legally involved ho is much better, because you don't know what these people can do, okay? They're like actually crack. That cop said that I knew that would happen.
शी सेड उसकी माँ चाहती नहीं है उस बंदे को छोड़ना, ठीक है, वो नहीं चाहती, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो पागल हो गई है प्यार में, वो अपनी बेटी को भी उसके प्यार में बेच देगी, ऐसा कुछ। प्लस शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम शी सीन अ केस ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है, उन्होंने पहले भी बहुत ऐसा देखा है, क्योंकि वो लोग, दैट्स व्हाट द कॉप सेड दैट, क्योंकि वो लोग इतने से 2 बाय 2 के कमरे में रहते हैं जिसमें मम्मी पापा भी, इनके 4 बच्चे हैं, एंड दे कीप फकिंग इन द सेम रूम और व्हाटएवर, जिसकी वजह से आई डोंट नो, लाइक एक इंसेस्ट का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा एलियन नहीं है उनके लिए। सो दैट्स व्हाट द कॉप सेड एंड शी सेड दैट आप अभी इस चीज में इन्वॉल्व मत हो, लाइक माय मॉम सेड मैं उसको लेके आ रही हूँ वापस। द कॉप लिटरली टोल्ड अस कि अगर आप इस चीज में इन्वॉल्व हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बंदा आपकी गाड़ी के आगे आ जाए, कुछ कुछ भी किसी भी तरीके से आपको फ्रेम कर दे, बिकॉज वी सीन दिस 1000 टाइम्स, लाइक वी लिटरली सीन इट कि वो जाते हैं और कोई कोठी वाले उनको लेके आते हैं बचाने के लिए, फिर जो उसका पति होता है वो अपने आप को हाथ पैर काट लेता है, बोल देता है इन लोगों ने मुझे पिटवाया था। तो शी सेड दैट आप इससे जितना दूर रहोगे उतना बेटर है। वी स्टिल कुडंट डाइजेस्ट द फैक्ट, लाइक आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट फकिंग स्केयर ऑफ एनीबॉडी, ठीक है, आई वाज ओनली स्केयर्ड कि वो कुछ कर ना दे। तो फिर मुझे जे का आफ्टर अ वाइल दोबारा फोन आता है टेलिंग मी कि ये झूठ बोल रहा है, मुझे पता है मेरी मम्मी इसको नहीं छोड़ेगी, दीदी आप मुझे ले जाओ, आप मुझे ले जाओ, आप एक काम करो मेरा किसी अनाथालय में आप मेरे को डलवा दो। आई वॉज लाइक ओके फाइन। तो कहती मैं आपके घर आ रही हूँ, आई डोंट नो वो कैसे आई, पर वो मेरे घर आ गई थी एंड आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है देखो हमें इसको कहीं भेजना पड़ेगा, बट देन अगेन द कॉप टोल्ड अस दैट बिकॉज यू नॉट द लीगल गार्डियन और एनीबडी फॉर दैट मैटर, यू कांट डू इट, you literally can't do it, the only thing you can do is keep her at your house। she was at my house and वो रोए जा रही थी कि मुझे नहीं रहना, मेरी मम्मी इसको नहीं छोड़ेगी, मेरी मम्मी इसके प्यार में पागल हो गई है। I fucking felt so helpless, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और उसके बाद उसकी मम्मी आई हमारे घर और उसकी मम्मी बोल रही है कि नहीं मैं उसको छोड़ दूंगी, मुझे पता है उसने बहुत बुरा किया है तेरे साथ, तो चल मेरे साथ घर, हम अपना टीवी फ्रिज वगैरह जो भी हमारे पास है वो पैक करते हैं और हम यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे को पता था, और अब इस कहानी के इधर तक आने तक आपको भी पता है कि उसकी माँ ऐसी नहीं है, ठीक है। सो आई टोल्ड हर नहीं मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। भाई वो मुझे लेके ही नहीं गई। वैसे तो इन हाइंडसाइट आई एम थिंकिंग अगर मेरे को लेके जाती शायद ये लोग मुझे कहीं फेंक चुके होते अभी तक काट के। मैंने जाते हुए उसकी बेटी को इतना बोला था कि सुन ये सारे नंबर है हमारे घर के, ये विमेन हेल्पलाइन का नंबर है, तू एक कॉल कर दे लोग यूं उठ के आ जाएंगे, ठीक है। एंड आई जस्ट hated that this is all I could fucking do for her. After this, like 3-4 days go by, and we're still like shook, obviously, and we're still thinking about it. And the thing is that जो मेरी मम्मी की दोस्त हमारे साथ गई थी, she heads this NGO जहाँ पे इन सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो बता रही थी कि ये तो स्कूल भी आ रही है, तो ये नहीं गई होगी यहाँ से भाग के क्योंकि स्कूल आ रही है एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर 3-4 दिन बाद जो जे है वो मेरे घर आ जाती है। नाउ आई आस्क कि तू कैसे आई है, तो उसने बोला कि मेरी मम्मी ने उसको नहीं छोड़ा है और हम तो काम पे आए हैं नॉर्मली, मेरी मम्मी भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। सो आई वाज लाइक व्हाट, क्योंकि वो हमारे घर के आसपास बहुत सारी जगहों पे काम करती थी, तो उसकी बेटी हमारे घर आ जाती थी पिछले 8-10 साल से, जो हमारे यहाँ पे बैठती थी, हमारे साथ गेम्स वेम्स खेलती थी या जो भी खाना पीना खाती थी अपना। तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि तो तुझे क्या करना है, तो कहती दीदी मैं तो भागना चाहती हूँ पर मेरी मम्मी भागेगी ही नहीं, वो नहीं छोड़ेगी उसको। इन दैट मोमेंट I just whatever cash I had, I gave it to her and I told her तू ये रख छुपा के अपने पास, मतलब छुपा के as in literally put it in your undergarments but keep it because you are going to need the money soon। तो मुझे बोलती है मैं दीदी मैं भाग जाऊँगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। तो मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे I don't know, like I don't know what to say, like is it safe to run away from a man with a man, I don't fucking know, ठीक है। and that too at that age I really didn't think that उसको कुछ भी करना चाहिए। मैंने बस उसको ये बोलता कि तू प्लीज़ अपनी मम्मी को बनाने की कोशिश कर। इन द मीनवाइल उसकी मम्मी जब घर आती है, सो माय मॉम जस्ट टेल्स हर कि देख अगर तुझे यहाँ पे काम करना है, ठीक है, तो तुझे उस आदमी को छोड़ना पड़ेगा या फिर तू कहीं शिफ्ट हो जाए, तो हमारे घर रह ले, ठीक है, हम ऊपर सर्वेंट्स क्वार्टर बनवा देंगे, तू यहाँ रह ले पर तू उसको छोड़ दे, तू उसको छोड़ दे। तो माय मॉम वाज ट्राइंग टू टेल हर दैट। और उसके बाद वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है मैं अब घर नहीं जाऊंगी रात तक, तो हमारे घर रुकी होती है। एंड इन द मीनवाइल जो उसका पति होता है, द स्टेप डैड, द फकिंग बास्टर्ड, he sends so many voice notes to my mom and he's just saying that अब क्यों कर रहे हो ऐसा, अब क्यों कर रहे हो। I'll see if I can put it here, ठीक है। भाभी एक बात बताओ कैसे होगा है? हर गलती मैंने भी तो इग्नोर करी है ना इनकी, आपको सारा पता है और आपने क्या करा, उसको छुपा के घर में बिठा लिया। क्या मेरे को पता नहीं है? वो आपके घर के सिवा कहीं जा ही नहीं सकती, आपके घर में ही है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है? भूखा प्यासा बैठा हूँ, क्या बज रहे हैं ये तो देख लो, कमरे पे बैठा हूँ मैं। सोचा भाभी आप भेज देंगे, आप भेज देंगे, आप भेज देंगे, आपने तो अभी तक नहीं भेजा।
भाभी एक बात बताऊँ, अगर मुझे कुछ होगा, मैंने भी ना बच्चे छोड़े हैं अपने इसके पीछे, ठीक है? अगर मुझे कुछ हुआ ना, मेरी मौत की ज़िम्मेवार ना ये तो होगी, आप उससे बढ़ के होगे, ये भी ध्यान रखना। And of course, that's like the biggest red flags. Again, my mom calls that cop, and the cop is like, stay the fuck away from these situations. This is literally what I warned you guys about. कि आप इतना ज़्यादा उसकी फैमिली में घुस रहे हो, उसको वो कर लेगा ऐसा. And they also said that for educational purpose, I'm also telling you guys that these people have like this community जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, तो वो आपके घर के बाहर कम से कम 60-70 लोग आके बैठ जाते हैं. एंड अंटिल यू पे देम लाइक अ hefty amount like tens of lakhs, वो आपके घर के बाहर से जाते ही नहीं है. लाइक वो लिटरली नहीं जाते, वो रकस मचाते रहते हैं. एंड इवेंचुअली यू हैव टू पे देम बिकॉज ऑफ कोर्स योर नेबर्स गेट अनॉयड. एंड इट्स लाइक मनी इज वन थिंग बट दे विल ऑल also hurt you. Like she literally told me that आपके तो घर का सब पता है उनको, क्योंकि वो इतने 10 साल से आपके घर पे काम कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है आपके घर आके. सो यू हैव टू बी सेफ. नाउ इट वाज लाइक, should I be safe or should I keep somebody else safe? So I tell her that please let us try to do anything else for them. And this is all जब वो मेरे को मेरी मेड बोलती है कि रात को यहीं रहूंगी और मैं नहीं घर वापस जाऊंगी, whatever. फिर हम लोग वो रात सोते हैं, हम सुबह उठते हैं, वो है ही नहीं, भाग गए होते हैं. वो अपनी बेटी को लेके भाग गई होती है. आई डोंट हियर फ्रॉम देम फॉर लाइक अ गुड वीक. और फिर वो जो एनजीओ में जो काम करती है आंटी, उन्होंने बताया कि वो फिर आ गई है पढ़ने उधर. और उसने लिटरली उन आंटी को सिर्फ ये बोला कि मेरी मम्मी कभी उसको नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं. Recently, he asked Jay again to do something in front of the mom, and the mom just didn't say anything. So I was like heartbroken. फिर कुछ दिन बाद आके वो उसी एनजीओ वाली आंटी को ये भी बताते हैं कि अब मेरी मम्मी मान गई है, हम यहाँ से भाग के जा रहे हैं. बट लेकिन फिर वो उसके बाद भी स्कूल आई थी until that auntie left the NGO. So I don't know where she is now. All I know is that she has, I gave her some money, which must have gotten over by now easily. I just hope wherever she is, she's safe. And yeah, like I just feel so bad, and I didn't want to make a story on this. This is so traumatizing. But then I was thinking, I was talking to my mom, and my mom said that if you have such a young audience, they should know how the world around them is. And even if you want to help somebody, you can't. Literally, the only person who can help you is yourself. Don't wait for something bad to happen. If you feel that there is this, girls, we know when somebody is even looking at you. Like अगर आप उनकी तरफ नहीं भी देख रहे हो, आपको अपने peripheral vision से पता चल जाएगा कि someone's looking at you in a weird way. And if that is the case, just report it. The only person that can help you is you and the cop. That's all. Not me, not anyone. No matter how much I fucking loved that kid or how much I wanted to do for her, I just could not. I'm so sorry for people who go through this. And I asked that cop that, do you see this all the time? And she was like, yeah, it's so normal that now we have tried to even understand the woman's side, like the mom side, that why are they doing it? Because it's like a natural occurrence at the police station. Like this shit always happens. I don't know, bro. Like I just did not want to talk about it for the longest time because nothing. Again, the thing is that I am not the victim here. I literally saw myself in her. She's a 13-year-old scared kid who just doesn't know what to do. She just probably wanted to live her life, and I just fucking hope, okay, I pray to God that she's fine now. I don't know. मेरे को बहुत टाइम से हमारे घर के आसपास भी नहीं दिखी है जहाँ पे वो काम करती थी, और मैंने पूछा भी था कि कुछ लोगों से कि वो अभी भी आपके घर काम पे आ रहे हैं, तो दे सेड नो. सो आई जस्ट होप दैट वो यहाँ से भाग चुके हों और उसकी माँ को थोड़ी अक्ल आ गई हो. That's all I know of till date, and if I get an update, I'll tell you guys. But the whole purpose of this story was to just inform you and educate you guys. I know a lot of young girls follow me. Do not accept this, and I know you won't. And if anybody around you is even trying to make you accept it, just you need to stand up for yourself. You literally need to stand up for yourself. You need to be strong, and there are so many helpline numbers that you can contact them. Do whatever it is in your power. Just keep yourself safe because these kind of people, इनको नहीं फर्क पड़ेगा कि अगर ये जेल भी चले गए तो ये आई डोंट वांट कि just because you're trying to stand up for yourself and I tell you to stand up for yourself, they harm you in some other way. Like there's one emotionally, physically, and then there's like they just start like hitting you, or I don't know, like I'm just scared that मुझे नहीं पता इन लोगों के दिमाग में क्या क्या आता है. For me, I put them in the same category as Jeffrey Dahmer. That's it. Whatever you're doing, just be safe. And I am so sorry if you could even relate to 1 second of this video. I hope I put some insight about this whole thing outside. I don't know if it was necessary for me to tell this story. Like abhi banate हुए भी I was like, should I put this out? Like, does anybody even want me to put this out? Let me know if you are okay with me talking about this. And yeah, that's it. That's all. That's why I said that मैं इस बात पे कोई jokes नहीं बनाने वाली हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि
It's that bad. Okay. I guess I will see you guys in my next video, hopefully soon. I know I've been very MIA. Please take care. Please, okay? Please take care. I love you so much, and I'll see you in my next video. Bye.